پڑھیے کلمہ، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ مسلمان ہیں؟ یقین کریں میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا۔ پاکستان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ قائد اعظم جناح کے لیے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں سچ کہتا ہوں اس معاملے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ اتنی جلدی نہ کیجیے، مانتا ہوں ان دنوں الڑ کے زمانے میں آپ کو فرصت نہیں، لیکن آپ خدا کے لیے میری پوری بات تو سن لیجیے۔ میں نے تکارام کو ضرور مارا ہے، اور جیسا کہ آپ کہتے ہیں تیز چھری سے اس کا پیٹ چاک کیا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ ہندو تھا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ تم نے اس لیے نہیں مارا تو پھر کس لیے مارا؟ لیجئے میں ساری داستان ہی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پڑھیے کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کس کافر کو معلوم تھا کہ میں اس لفڑے میں پڑ جاؤں گا؟ پچھلے ہندو مسلم فساد میں میں نے 3 ہندو مارے تھے، لیکن آپ یقین مانیے وہ مارنا کچھ اور ہے اور یہ مارنا کچھ اور ہے۔ خیر آپ سنیے کہ ہوا کیا، میں نے اس تکارام کو کیوں مارا۔ کیوں صاحب، عورت ذات کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں بزرگوں نے ٹھیک کہا ہے، اس کے چلتروں سے خدا ہی بچائے۔ پھانسی سے بچ گیا تو دیکھیے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، پھر کبھی کسی عورت کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ لیکن صاحب عورت بھی اکیلی سزاوار نہیں، مرد سالے بھی کم نہیں ہوتے۔ بس کسی عورت کو دیکھا اور ریشہ ختمی ہو گئے۔ خدا کو جان دینی ہے انسپیکٹر صاحب، رکمہ کو دیکھ کر میرا بھی یہی حال ہوا تھا۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے، بندہ خدا تو ایک 35 روپے کا ملازم، تجھے بھلا عشق سے کیا کام؟ کرایہ وصول کر اور چلتا بن۔ لیکن آفت یہ ہوئی صاحب کہ ایک دن جب میں 16 نمبر کی کھولی کا کرایہ وصول کرنے گیا اور دروازہ ٹھوکا تو اندر سے رکمہ بائی نکلی۔ یوں تو میں رکمہ بائی کو کئی دفعہ دیکھ چکا تھا، لیکن اس دن کمبخت نے بدن پر تیل ملا ہوا تھا اور ایک پتلی دھوتی لپیٹ رکھی تھی۔ جانے کیا ہوا مجھے، جی چاہا اس کی دھوتی اتار کر زور زور سے مالش کر دوں۔ بس صاحب اسی روز سے اس بندہ نابکار نے اپنا دل دماغ سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ کیا عورت تھی، بدن تھا پتھر کی طرح سخت، مالش کرتے کرتے ہانپنے لگ گیا تھا، مگر وہ اپنے باپ کی بیٹی یہی کہتی رہی، تھوڑی دیر اور۔ شادی شدہ؟ جی ہاں شادی شدہ تھی، اور خان چوکیدار نے کہا تھا کہ اس کا ایک یار بھی ہے۔ لیکن آپ سارا قصہ سن لیجئے، یار وار سب ہی اس میں آ جائیں گے۔ جی ہاں، بس اس روز سے عشق کا بھوت میرے سر پر سوار ہو گیا۔ وہ بھی کچھ سمجھ گئی تھی، کیونکہ کبھی کبھی کن اکھیوں سے میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتی تھی، لیکن خدا گواہ ہے جب بھی وہ مسکرائی میرے بدن میں خوف کی ایک تھر تھری سی دوڑ گئی۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ معشوق کو پاس دیکھنے کا وہ ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا۔ لیکن آپ شروع ہی سے سنیے۔ وہ تو میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ رکمہ بائی سے میری آنکھ لڑ گئی تھی۔ اب دن رات میں سوچتا تھا کہ اسے پٹایا کیسے جائے۔ کمبخت اس کا خاوند ہر وقت کھولی میں بیٹھا لکڑی کے کھلونے بناتا رہتا، کوئی چانس ملتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن بازار میں نے اس کے خاوند کو، جس کا نام خدا آپ کا بھلا کرے کیا جی کیا تھا، ہاں گردھاری، لکڑی کے کھلونے چادر میں باندھے لے جاتے دیکھا تو میں نے جھٹ سے 16 نمبر کی کھولی کا رخ کیا۔ دھڑکتے دل سے میں نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، رکمہ بائی نے میری طرف گھور کے دیکھا۔ خدا کی قسم میری روح لرز گئی، بھاگ گیا ہوتا وہاں سے، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جب اندر گیا تو اس نے کھولی کا دروازہ بند کر کے مجھ سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا تو اس نے میرے پاس آ کر کہا، دیکھو میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو، لیکن جب تک گردھاری زندہ ہے تمہاری مراد پوری نہیں ہو سکتی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، اسے پاس دیکھ کر میرا خون گرم ہو گیا تھا، کن پٹیاں ٹھک ٹھک کر رہی تھیں۔
कमबख्त ने आज भी बदन पर तेल मला हुआ था और वही पतली धोती लपेटी हुई थी। मैंने उसे बाजुओं से पकड़ लिया और दबाकर कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम क्या कह रही हो? उफ, उसके बाजुओं के पट्टे किस कदर सख्त थे। अर्ज करता हूं, मैं बयान नहीं कर सकता कि वो किस किस्म की औरत थी। मैं और ज्यादा गर्म हो गया और उसे अपने साथ चिमटा लिया। गिरधारी जाए जहन्नुम में, तुम्हें मेरी बनना होगा। रुकमा ने मुझे अपने जिस्म से अलग किया और कहा, देखो तेल लग जाएगा। मैंने कहा, लगने दो, और फिर उसे अपने सीने के साथ भींच लिया। यकीन मानिए, अगर उस वक्त आप मारे कोड़ों के मेरी पीठ की चमड़ी उधेड़ देते तब भी मैं उसे अलहदा न करता। लेकिन कमबख्त ने ऐसा पिचकारा कि जहां उसने मुझे पहले बिठाया था, खामोश होकर बैठ गया। मुझे मालूम था वो सोच क्या रही है। गिरधारी साला बाहर है, डर किस बात का है। थोड़ी देर के लिए मुझसे रहा न गया तो मैंने उससे कहा, रुकमा, ऐसा अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। उसने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर कहा, इससे भी अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन तुम ये बताओ, जो कुछ मैं कहूंगी करोगे? साहब, मेरे सर पर तो भूत सवार था। मैंने जोश में आकर जवाब दिया, तुम्हारे लिए मैं 15 आदमी कत्ल करने को तैयार हूं। ये सुनकर वो मुस्कुराई। मुझे विश्वास है, खुदा की कसम, एक बार फिर मेरी रूह लर्ज गई। लेकिन मैंने सोचा, शायद ज्यादा जोश आने पर ऐसा हुआ है। बस वहां मैं थोड़ी देर और बैठा, प्यार और मोहब्बत की बातें की, उसके हाथ के बने हुए भुजिए खाए और चुपके से बाहर निकल आया। गो वो सिलसिला ना हुआ, लेकिन साहब, ऐसे सिलसिले पहले ही दिन थोड़ी होते हैं। मैंने सोचा, फिर सही। 10 दिन गुजर गए। ठीक 11वें दिन रात के 2 बजे, हाँ 2 बजे ही का अमल था, किसी ने मुझे आहिस्ता से जगाया। मैं नीचे सीढ़ियों के पास जो जगह है ना, वहां सोता हूं। आंखें खोलकर मैंने देखा, अरे रुकमा बाई। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने आहिस्ता से पूछा, क्या है? उसने हौले से कहा, आओ मेरे साथ। मैं नंगे पांव उसके साथ हो लिया। मैंने और कुछ ना सोचा और वहीं खड़े खड़े उसको सीने के साथ भींच लिया। उसने मेरे कान में कहा, अभी ठहरो। फिर बत्ती रोशन की। मेरी आंखें चुंधिया सी गईं। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि सामने चटाई पर कोई सो रहा है, मुंह पर कपड़ा है। मैंने इशारे से पूछा, ये क्या? रुकमा ने कहा, बैठ जाओ। मैं उल्लू की तरह बैठ गया। वो मेरे पास आई और बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरकर उसने ऐसी बात कही जिसको सुनकर मेरे औसान खता हो गए, बिल्कुल बर्फ हो गया। साहब, काटो तो लहू नहीं बदन में। जानते हैं रुकमा ने मुझसे क्या कहा? पढ़िए कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी। कमबख्त ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मैंने गिरधारी को मार डाला है। आप यकीन कीजिए, उसने अपने हाथों से एक हट्टे कट्टे आदमी को कत्ल किया था। क्या औरत थी साहब। मुझे जब भी वो रात याद आती है, कसम खुदावंद पाक की, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने मुझे वो चीज दिखाई जिससे उस जालिम ने गिरधारी का गला घूंटा था। बिजली के तारों की गुंदी हुई एक मजबूत रस्सी थी। लकड़ी फंसाकर उसने जोर से कुछ ऐसे पेच दिए थे कि बेचारे की जुबान और आंख बाहर निकल आई थी। कहती थी, बस यूं चुटकियों में काम तमाम हो गया था। कपड़ा उठाकर जब उसने गिरधारी की शक्ल दिखाई तो मेरी हड्डियां तक बर्फ हो गईं। लेकिन वो औरत जाने क्या थी। वही लाश के सामने उसने मुझे अपने साथ लिपटा लिया। कुरान की कसम, मेरा ख्याल था कि सारी उम्र के लिए नामर्द हो गया हूं। मगर साहब, जब उसका गरम गरम पिंडा मेरे बदन के साथ लगा और उसने एक अजीबो गरीब किस्म का प्यार किया तो अल्लाह जानता है 14 तबक रोशन हो गए। जिंदगी भर वो रात मुझे याद रहेगी। सामने लाश पड़ी थी, लेकिन रुकमा और मैं दोनों उससे गाफिल एक दूसरे के अंदर धंसे हुए थे। सुबह हुई तो हम दोनों ने मिलकर गिरधारी की लाश के 3 टुकड़े किए। औजार उसके मौजूद थे, इसलिए ज्यादा तकलीफ न हुई। ठक ठक काफी हुई थी, पर लोगों ने समझा होगा गिरधारी खिलौने बना रहा है।
आप पूछेंगे बंदा खुदा, तुमने ऐसे घिनौने काम में हिस्सा क्यों लिया, पुलिस में रिपोर्ट क्यों ना लिखवाई? साहब, अर्ज ये है कि उस कमबख्त ने मुझे एक ही रात में अपना गुलाम बना लिया था। अगर वो मुझसे कहती तो शायद मैंने 15 आदमियों का खून भी कर ही दिया होता। याद है ना, मैंने एक दफा उससे जोश में आकर क्या कहा था? अब मुसीबत ये थी कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। रुकमा कुछ भी हो, आखिर औरत जात थी। मैंने उससे कहा, जानेमन, तुम कुछ फिक्र न करो, फिलहाल इन टुकड़ों को ट्रंक में बंद कर देते हैं। जब रात आएगी तो मैं उठा कर ले जाऊंगा। अब खुदा का करना ऐसा हुआ साहब कि उस रोज हुल्लड़ हुआ। 5-6 इलाकों में खूब मारामारी हुई। गवर्नमेंट ने 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया। मैंने कहा, अब्दुल करीम, कुछ भी हो, लाश आज ही ठिकाने लगा दो। चुनाचे 2 बजे उठा, ऊपर से ट्रंक लिया। खुदा की पनाह, कितना वजन था। मुझे डर था रास्ते में कोई पीली पगड़ी वाला जरूर मिलेगा और कर्फ्यू ऑर्डर की खिलाफ वर्जी में धर लेगा। मगर साहब, जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। जिस बाजार से गुजरा उसमें सन्नाटा था। एक जगह बाजार के पास मुझे एक छोटी सी मस्जिद नजर आई। मैंने ट्रंक खोला और लाश के टुकड़े निकालकर अंदर ड्योढ़ी में डाल दिए और वापस चला आया। कुर्बान उसकी कुदरत के, सुबह पता चला कि हिंदुओं ने उस मस्जिद को आग लगा दी। मेरा ख्याल है गिरधारी उसके साथ ही जलकर राख हो गया होगा, क्योंकि अखबारों में किसी लाश का जिक्र नहीं था। अब साहब, बकौल शख्से मैदान खाली था। मैंने रुकमा से कहा, जाली में मशहूर कर दो कि गिरधारी बाहर काम गया है। मैं रात को 2-2:30 बजे आ जाया करूंगा और ऐश किया करेंगे। मगर उसने कहा, नहीं अब्दुल, इतनी जल्दी नहीं। अभी हमको कम से कम 15-20 रोज तक नहीं मिलना चाहिए। बात माकूल थी, इसलिए मैं खामोश रहा। 17 रोज गुजर गए। कई बार डरावने ख्वाबों में गिरधारी आया, लेकिन मैंने कहा, साले मर खप चुका है, अब मेरा क्या बिगाड़ सकता है। 18वें रोज साहब, मैं उसी तरह सीढ़ियों के पास चारपाई पर सो रहा था कि रुकमा रात के 12 नहीं तो 1 होगा, आई और मुझे ऊपर ले गई। चटाई पर नंगी लेटकर उसने मुझसे कहा, अब्दुल, मेरा बदन दुख रहा है, जरा चंपी कर दो। मैंने फौरन तेल लिया और मालिश करने लगा, लेकिन आधे घंटे में ही हाँफने लगा। मेरे पसीने की कई बूंदें उसके चिकने बदन पर गिरी, लेकिन उसने ये ना कहा, बस कर अब्दुल, तुम थक गए हो। आखिर मुझे ही कहना पड़ा, रुकमा भाई, अब खलास। वो मुस्कुराई। मेरे खुदा, क्या मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर दम लेने के बाद मैं चटाई पर बैठ गया। उसने उठकर बत्ती बुझाई और मेरे साथ लेट गई। चंपी कर करके मैं इस कदर थक गया था कि किसी चीज का होश न रहा। रुकमा के सीने पर हाथ रखा और सो गया। जाने क्या वजह था, मैं एकदम हड़बड़ा के उठा। गर्दन में कोई सख्त सख्त सी चीज धंस रही थी। फौरन मुझे उस तार वाली रस्सी का ख्याल आया, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर सकूं, रुकमा मेरी छाती पर चढ़ बैठी। 1-2 ऐसे मरोड़े दिए कि मेरी गर्दन कड़कड़ कड़कड़ बोल उठी। मैंने शोर मचाना चाहा, लेकिन आवाज मेरे पेट में रही। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मेरा ख्याल है 4 बजे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे होश आना शुरू हुआ। गर्दन में बहुत जोर का दर्द था। मैं वैसे ही दम साधे पड़ा रहा और हौले हौले हाथ से रस्सी के मरोड़े खोलने शुरू किए। एकदम आवाजें आने लगी। मैंने सांस रोक लिया। कमरे में घुप अंधेरा था। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की, पर कुछ नजर न आया। जो आवाजें आ रही थी उनसे मालूम होता था 2 आदमी कुश्ती लड़ रहे हैं। रुकमा हाँप रही थी। हाँपते हाँपते उसने कहा, तुकाराम, बत्ती जला दो। तुकाराम ने डरते हुए लहजे में कहा, नहीं नहीं रुकमा, नहीं। रुकमा बोली, बड़े डरपोक हो, सुबह उसके 3 टुकड़े करके ले जाओ कैसे? मेरा बदन बिल्कुल ठंडा हो गया। तुकाराम ने क्या जवाब दिया? रुकमा ने फिर क्या कहा, इसका मुझे कुछ होश नहीं। पता नहीं कब एकदम रोशनी हुई और मैं आंखें झपकता उठ बैठा।
तुकारराम के मुंह से जोर की चीख निकली और वो दरवाजा खोल कर भाग गया। रुकमा ने जल्दी से किवाड़ बंद की और कुंडी चढ़ा दी। साहब, मैं आपसे क्या बयान करूं, मेरी हालत क्या थी। आंखें खुली थी, देख रहा था, सुन रहा था, लेकिन हिलने जुलने की बिल्कुल सकत नहीं थी। ये तुकारराम मेरे लिए कोई नया आदमी नहीं था। हमारी चाली में अक्सर आम बेचने आया करता था। रुकमा ने उसको कैसे फंसाया इसका मुझे इल्म नहीं। रुकमा मेरी तरफ घूर घूर के देख रही थी, जैसे उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं। वो मुझे मार चुकी थी, लेकिन मैं उसके सामने जिंदा बैठा था। खैर, वो मुझ पर झपटने को थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और बहुत से आदमियों की आवाजें आईं। रुकमा ने झट से मेरा बाजू पकड़ा और घसीट कर मुझे गुस्ल खाने के अंदर डाल दिया। उसके बाद उसने दरवाजा खोला। पड़ोस के आदमी थे। उन्होंने रुकमा से पूछा, खैरियत है? अभी अभी हमने चीख की आवाज सुनी थी। रुकमा ने जवाब दिया, खैरियत है, मुझे सोते में चलने की आदत है। दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो दीवार के साथ टकरा गई और डर कर मुंह से चीख निकल गई। पड़ोस के ये आदमी सुनकर चले गए। रुकमा ने किवाड़ बंद किए और कुंडी चढ़ा दी। अब मुझे अपनी जान की फिक्र हुई। आप यकीन मानिए, ये सोचकर कि वो जालिम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, एकदम मेरे अंदर मुकाबले की बेपनाह ताकत आ गई। बल्कि मैंने इरादा कर लिया कि रुकमा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुस्ल खाने से बाहर निकला तो देखा कि वो बड़ी खिड़की के पट खोले बाहर झांक रही है। मैं एकदम लपका, चुथड़ों पर से उठाया और बाहर धकेल दिया। ये सब यूं चुटकियों में हुआ। धप सी आवाज आई और मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। सारी रात मैं चारपाई पर लेटा अपनी गर्दन पर, जो बहुत बुरी तरह जख्मी हो रही थी, आप निशान देख सकते हैं, तेल मलमल कर सोचता रहा कि किसी को पता नहीं चलेगा। उसने पड़ोसियों से कहा था कि उसे सोते में चलने की आदत है। मकान के उस तरफ जहां मैंने उसे गिराया था, जब उसकी लाश देखी जाएगी तो लोग यही समझेंगे कि सोते में चली है और खिड़की से बाहर गिर पड़ी है। खुदा खुदा करके सुबह हुई। गर्दन पर मैंने रुमाल बांध लिया ताकि जख्म दिखाई न दे। 9 बज गए, 12 हो गए, मगर रुकमा की लाश की कोई बात ही ना हुई। जिधर मैंने उसको गिराया था एक तंग गली है। 2 बिल्डिंगों के दरमियान 2 तरफ दरवाजे हैं ताकि लोग अंदर दाखिल होकर पेशाब पखाना ना करें। फिर भी 2 बिल्डिंगों की खिड़कियों में से फेंका हुआ कचरा काफी जमा होता है, जो हर रोज सुबह सवेरे भंगन उठाकर ले जाती है। मैंने सोचा शायद भंगन नहीं आई होती तो उसने दरवाजा खोलते ही रुकमा की लाश देखी होती और शोर बर्पा कर दिया होता। किस्सा क्या था? मैं चाहता था कि लोगों को जल्द इस बात का पता चल जाए। 2 बज गए तो मैंने जी कड़ा करके खुद ही दरवाजा खोला। लाश थी ना कचरा। या मजहरुल अजाइब, रुकमा गई कहां? कुरान की कसम खाकर कहता हूं, मुझे इस फांसी के फंदे से बच निकलने का इतना ताज्जुब नहीं होगा जितना कि रुकमा के गायब होने का है। 3री मंजिल से मैंने उसे गिराया था, पत्थरों के फर्श पर। बची कैसी होगी? लेकिन फिर सवाल है कि उसकी लाश कौन उठाकर ले गया? अक्ल नहीं मानती, लेकिन साहब कुछ पता नहीं वो डायन जिंदा हो। चाली में तो यही मशहूर है कि या तो किसी मुसलमान ने घेर घर डाल लिया है या मार डाला है। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। मार डाला है तो अच्छा किया है, घर डाल लिया है तो जो हश्र उस गरीब का होगा आप जानते ही हैं। खुदा बचाए साहब। अब तुकारराम की बात सुनिए। उस वाक़े के ठीक 20 रोज बाद वो मुझसे मिला और पूछने लगा, बताओ रुकमा कहाँ है? मैंने कहा, मुझे कुछ इल्म नहीं। कहने लगा, नहीं तुम जानते हो। मैंने जवाब दिया, भाई कुरान मजीद की कसम मुझे कुछ मालूम नहीं। बोला, नहीं तुम झूठ बोलते हो, तुमने उसे मार डाला है। मैं पुलिस में रपट लिखवाने वाला हूं कि पहले तुमने गिरधारी को मारा फिर रुकमा को। ये कहकर वो तो चला गया, लेकिन साहब मेरे पसीने छूट गए। बहुत देर तक कुछ समझ में ना आया क्या करूं। एक ही बात सूझी कि उसको ठिकाने लगा दूं। आप ही सोचिए उसके अलावा और इलाज भी क्या था। चाचे साहब उस वक्त छुपकर छुरी तेज की और तुकारराम को ढूंढने निकल पड़ा। इत्तेफाक की बात है, शाम को 6 बजे वो मुझे स्ट्रीट के नाके पर मूत्री के पास मिल गया। मौसम्बियों की खाली टोकरी बाहर रखकर वो पेशाब करने के लिए अंदर गया।
मैं भी लपक कर उसके पीछे। धोती खोल ही रहा था कि मैंने जोर से पुकारा, तुकाराम। पलट कर उसने मेरी तरफ देखा। छुरी मेरे हाथ ही में थी, एकदम उसके पेट में भौंक दी। उसने दोनों हाथों से अपनी बाहर निकलती हुई अंतड़ियां थामी और दौरा होकर गिर पड़ा। चाहिए तो ये था कि बाहर निकलकर 9-11 हो जाता, मगर बेवकूफी देखिए। बैठकर उसकी नब्ज देखने लगा कि आया मरा है या नहीं। मैंने इतना सुना था कि नब्ज होती है अंगूठे की तरफ या दूसरी तरफ, ये मुझे मालूम नहीं था। चुनाचे ढूंढते ढूंढते देर लग गई। इतने में एक कांस्टेबल पतलून के बटन खोलते खोलते अंदर आया और मैं धर लिया गया। बस साहब, ये है पूरी दास्तान। पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो मैंने रत्ती भर भी झूठ बोला हो।